प्रसाद की इतनी महत्ता होंदी है। गुरु गोबिंद सिंह जी जद आनंदपुर तो मुगल फौजा ने उन्होंने उजाड़ दिता, उदों दीना पिंड पंजाब दे विच है, उत्थे आके वो रहे। लखमीर शमीर दो भरा सन। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह नूं पनाह देनी, मौत नूं आवाज़ मारनी सी। वो कहण लगे बई तूं इउं कर, इनू पकड़ के गौरमेंट का भगौड़ा साढ़े पास भेज। शमीर ने लखमीर ने दोनों भरावां ने पत्र लिखिया। वजीद खां उस वेले दा जिहड़ा गवर्नर सी पंजाब दा, कि सानू मार के तू इस नूं पकड़ सकदा है, तैनूं पकड़ के फड़ाउण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। 6 महीने गुरु गोबिंद सिंह जी उत्थे टिके। एक दिन उन्हां दे दिल च दया आई, उन्हां ने शमीर नूं प्रसाद दिता कि आ लै शमीर प्रसाद, तू खा लै, अपने परिवार नूं खवा दे, उन्हां नूं भी दे दी। शमीर दा जिहड़ा मामा सीगा ਉਹ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਪੀਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਜੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵਸਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ 2 ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਜੜਾਂ ਪੱਟੇ ਗਏ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਥੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਮੀਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਬਗੈਰ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੋ ਉਹਦਾ ਮਾਮੇ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਜੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਾਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਸ਼ਮੀਰ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੇਰੀ 84 ਕੱਟ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜਾ ਪੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਪੀਲਾਂ ਪੇਂਜੂ ਔਰ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੋ ਕੰਦਾ ਕੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਬੂਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛਿਲੜਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਵਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਗੈਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ लड़कियां भगती भाव वालियां होणगियां, वो सच है आज 300 साल बाद भी। प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी बाबा जी ने बताई मैं आपको हिंदी में कहने की कोशिश करूंगा। बाबा जी ने कभी प्रसाद की महानता के बारे में बात की है कि किस तरीके से प्रसाद की क्या महानता है।
अक्सर हम लोग प्रसाद की इतनी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन प्रसाद में बहुत दया होती है और संतों की दया किस वक्त किस रूप में कार्य करे हमें पता नहीं होता। प्रसाद की महानता के बारे में बाबा जी ने बहुत सत्संग में बताया है। आपने गुरु से मिला प्रसाद बाबा जी कभी किसी से नहीं बांटते थे, बल्कि कमरा बंद करके उस प्रसाद को ग्रहण करते, और जब तक खत्म ना हो जाए वो प्रसाद बाहर नहीं आते थे। बाबा जी बताया करते थे कि प्रसाद में गुरु की दया, बहुत दया होती है। बाबा जी गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी सुनाया करते थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी को मुगल फौजों ने दंड किया तो वो अनंतपुर से निकल के पंजाब में एक जगह है दीना नामक गांव में आकर रहे। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी को पनाह देनी मौत को बुलावा देना जैसा था, क्योंकि मुगल उनके खिलाफ थे और हमेशा वो उनको अपना दुश्मन मानते थे। लेकिन उस गांव में लखमीर और शमीर नामक दो भाइयों ने बिना मुगलों के डर से गुरु गोविंद सिंह जी को अपने घर में जगह दी। जब पंजाब के गवर्नर को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी वहां उनके घर है, तो उन्होंने बुलावा भेजा कि आप इनको हमारे हवाले कर दो। दोनों भाइयों ने वापस उनको लेटर लिखा कि आप हमें मार के ही इनको ले जा सकते हो, वैसे हम आपको नहीं देंगे, आपके सुपुर्द नहीं करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी 6 महीने तक उनके घर रहे और एक दिन उनके दिल में दया आई कि दोनों भाइयों ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, तो उन्होंने शमीर को और उसके परिवार के लिए प्रसाद दिया। शमीर का एक मामा भी था जो कि सुल्तान पीर को मानता था। सुल्तान पीर हिंदुस्तान में काफी समय पहले कोई महात्मा हुए थे। किसी को यह भी मालूम नहीं वो कितने साल पहले हुए थे, कितने साल जीवित रहे, फिर भी लोग उनको मानते थे। शमीर के मामा ने शमीर से कहा, जिसका खुद कोई ठौर ठिकाना नहीं है वह तुम्हारी क्या मदद कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने थोड़ा सा फुल्लियों का प्रसाद दिया था, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम गुरु गोविंद सिंह की बात सुनोगे तो सुल्तान पीर तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। मामा की बात सुन के शमीर डर गया और उसने वह प्रसाद जमीन में दबा दिया। लेकिन जब वह प्रसाद दबा रहा था तो उनके घर की परिवार की छोटी बच्चियों ने देखा, उन्होंने वह प्रसाद निकाल के खा लिया। गुरु गोविंद सिंह जी को जब पता चला तो उन्होंने शमीर से कहा, वह प्रसाद परमात्मा की तरफ से था, लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। वह प्रसाद खाने से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मुक्ति हो सकती थी, हो जानी थी। तुम्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। तुमने तो उसे खाया नहीं, लेकिन उन बच्चियों ने जिन्होंने खाया उनका भला जरूर होगा। जो भी लड़कियां तुम्हारे कुल में पैदा होगी उनके बच्चे जरूर होंगे और वे कभी बेऔलाद नहीं रहेंगे, उनके बच्चे जरूर होंगे उन लड़कियों के। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने शमीर से कहा, तुम ऐसा करो, तुम घोड़े का चक्कर लगा के आओ दूर तक, वहां तक तुम्हारा राज हो जाएगा। घर जाकर शमीर ने फिर अपने मामा को बात बताई। मामा ने फिर वही बात कही कि जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है वह तुम्हारी क्या मदद कर सकता, तुम्हें क्या देगा। एक तरफ वह गुरु गोविंद सिंह जी से डरता था, दूसरी तरफ मामा से भी डरता था। आखिर डरते डरते वह गांव के आसपास घोड़े का छोटा सा चक्कर लगाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने शमीर से कहा, तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हें दुनिया का भी सब कुछ देना चाहते थे, अंदर तो आगे तुम्हें ले जाना ही था। रात को गुरु गोविंद सिंह जी उठे और फिर पूछा शमीर से, तुम यहां खड़े हो? शमीर ने कहा, हाँ जी। उन्होंने शमीर से कहा, तीसरा वचन मांगो। शमीर ने कहा, मेरा जन्म मरण का चक्कर काट दो और कुछ नहीं चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे जाकर सोने के लिए कहा। जब वह सोया तो उसने बहुत सपने देखा, बहुत लंबा सपना देखा। उस सपने में वह बहुत जगहों पर उसका जन्म हुआ, कभी कहीं। आखिर एक गरीब घर में उसका जन्म हुआ। वहां बहुत अकाल पड़ा। खेत में जाकर जड़ी बूटियां घास फूस खाने लगे। वह पेट से गिरा और उसकी टांग टूट गई। उसे बहुत दर्द हुआ। दर्द के कारण उसकी आंख खुल गई और उसके मुंह में वही घास थी जो उसने सपने में वो खा रहा था। कांपते हुए वह गुरु गोविंद सिंह जी के पास आया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से
अपने सपने के बारे में बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तुमने इतने जन्मों में जाना था, लेकिन उन सब का भुगतान तुम्हारा सपने में ही हो गया। अब गुरु नानक का दरबार तुम्हारे लिए खुला है और वे खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि वह इलाका उनके आसपास के घर के आसपास ही था। जिन लड़कियों ने वह प्रसाद खाया था, गुरु गोविंद सिंह जी के वरदान के अनुसार वो लड़कियां भक्ति भाव वाली बनी और उनके वो बिना औलाद नहीं रही, उनके सबके हमेशा बच्चे हुए। वह वरदान अब तक 300 साल बाद भी सच है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए, उनकी बात हमेशा सच होती है। गुरु का दिया हुआ प्रसाद अनमोल होता है, दया से भरा होता है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। किसी की बातों में आके गुरु की बात को नहीं टालना चाहिए और प्रसाद को ऐसे ही नहीं समझना ये चाहिए कि ये टॉफी है जाजे, ऐसे ही है, कोई खास नहीं। अक्सर बाबा जी के वक्त में भी ये देखने में बात आई है कि प्रेमी आश्रम से फुल्का ले जाते थे, उसको घर में ले आके पीस के अपने आटे में डाल के, वो अगर कोई घर में बीमार होता या जिनका वजन अभ्यास नहीं बनता था, वो प्रेमी वो खाते थे, उनकी बीमारी ठीक होती थी। और जिनका वजन अभ्यास नहीं बनता था, उनका वजन अभ्यास भी बनता था। बाबा जी ने हमेशा कहा कि गुरु की दया, गुरु की प्रसाद हमेशा वही फायदा उठाते हैं जो उसकी कदर करते हैं, जो दिल से आत्मा से अपने प्रसाद, गुरु के दिए हुए प्रसाद को परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद समझते हैं। वो दुनियावी तौर पे नहीं समझते कि हमें कुछ भी मिला है। तो आज भी आप जितना भी बाबा जी के यहाँ आपको रूम में प्रसाद मिलता है, हमने शुरू से ही कोशिश की है कि जो बाबा जी के वक्त में बाबा जी के देह रूप में होता प्रसाद हुआ करता था, हम उसी प्रसाद को वैसे ही मिक्स करके चलते हैं और आज भी वो प्रसाद वैसे ही मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और जो बाहर पानी पीने वाली डिग्गी है, जिसका पानी हम सब पीते हैं, जो मटका बाबा जी का पानी वाला था, हमने वो पानी उस डिग्गी में मिलाया था। और वो जब भी डिग्गी को हम खाली करते हैं तो उसमें से पानी निकाल के अलग रख के दोबारा जब भी पानी डालते हैं तो उस पानी को उसमें दोबारा मिक्स करते हैं। हमारे लिए वो प्रसाद है। हमने हमेशा कोशिश की है कि जाने अनजाने में गलती ना हो, उस पानी की हमेशा वैल्यू रखते हैं, उस प्रसाद पानी को हमेशा फजूल में खर्च नहीं करते। इसी तरीके से बाबा जी का प्रसाद को आज भी हमेशा सहेज के रखने की कोशिश करते हैं, उसको कभी गंदे हाथ लगाने की कोशिश नहीं करते। हमने यहाँ तक जो टोकरी वो प्रसाद वाली है, उस टोकरी को भी बाबा जी के हाथ लगे हुए, हालांकि वो पुरानी हो गई है, हमने कभी बदलने के बारे में नहीं सोचा। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि जिन चीजों को बाबा जी के हाथ लगे, चाहे वो बाबा जी के दरवाजे हैं, बाबा जी की चेयर है, बाबा जी का बेड है, वो हमने कभी बदलने की कोशिश नहीं की। मकान को हमने दोबारा से मजबूरी में तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा, लेकिन उसकी चीजें वो वैसे की वैसे ही। इवन आप सीढ़ियां चढ़ते हुए जो साइड में लोहे की पाइप लगी हुई है, वो पाइप चाहे कैसी भी है, दिखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो पाइप को भी बाबा जी के हाथ लगे हुए। आज भी जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो ऐसा ही लगता है कि ये पाइप भी बाबा जी के हाथ टच हुए हुए। कभी भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई मकान तोड़ने के दौरान, 2-3 बार वो बदली गई है, लेकिन काफी लोगों ने बोला कि यहाँ स्टील की लगनी चाहिए, ये अच्छी नहीं लगती। लेकिन हमारे लिए वो पाइप बहुत मायने रखती है, हमारे लिए वो पाइप स्टील से भी बढ़ के। ये सब बताने का कारण आज बाई चांस इस स्टोरी के माध्यम से प्रसाद की महानता के बारे में बात हो रही है। इसलिए आप प्रेमियों से ये बात शेयर किया कि कभी भी आप आश्रम में आते हैं तो पाइप को टच करके देखिए, सिमरन करके देखिए, आपको फील होगा कि आपके महान गुरु का उस जगह पे ऐसा लगता है कि बाबा जी अभी यहाँ से निकल के गए। मैंने पहले भी वो स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से वो मेडिटेशन रूम में जो साइड में स्लाइडिंग वो लगी हुई एल्युमिनियम की सीट, किस तरीके से वो गैर सत्संगी ने लगाई और उसको किस तरीके से बाबा जी के दर्शन हुए। कोई भी हिस्सा तोड़ा गया मकान बाबा जी के आश्रम का, वो बेवकूफी में भी नहीं तोड़ा गया, या
उसको मजाक में लेके नहीं तोड़ा गया, लेकिन हर उस चीज के पीछे बाबा जी की दया रही है, प्रेरणा रही है, इसीलिए उस चीज को तोड़ने की हिम्मत की है। और बाबा जी ने दया करके जब भी कोई भी चीज ऐसी करने की कोशिश की है, बिना बाबा जी के दया के हमने नहीं किया आज तक अपनी मर्जी से। चाहे वो सत्संग हॉल रहा है, चाहे बाबा जी का मकान रहा है, बाकी जितनी भी चीजें, वो सब हमारे लिए बाबा जी की प्रेरणा के बिना कुछ भी चेंज करना मुनासिब नहीं था और हम कर भी नहीं सकते थे। लेकिन आपने देखा कि इतने सालों में वो सब चीजें किस तरीके से सबकी रूह को सुकून देती है, सबको अच्छा लगता है और संगत के फायदे के लिए। हमें भी बाबा जी के दिया हुआ प्रसाद जब भी आप आश्रम आते हैं उसकी वही कदर रखेंगे, उसी इसी प्रेरणा को लेके आप जाएंगे तो आप भी वो फायदा जरूर उठाएंगे। हम आशा करते हैं कि प्रेमी जिस जज्बे के साथ आश्रम आते हैं, मैं हमेशा यह कहता हूं कि आश्रम में आने का मकसद मतलब अपने भजन सिमरन करना है, सत्संग सुनने आना है और अपने गुरु की याद में आना है। ये जगह घूमने के लिए नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि पिछले काफी सालों से प्रेमी इस बात को मानते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कभी अनाउंसमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप भजन के लिए बैठिए, आप सत्संग के लिए आइए। बस बाबा जी के चरणों में बेनती है कि जो दया आपने हमें हमारे ऊपर हमेशा की हुई है, हम सब पे वो दया हमेशा बनी रहे, ताकि हम आपके कहे अनुसार ज्यादा से ज्यादा वक्त भजन अभ्यास कर सकें।